Done. So let's start with the next topic, and this is the last topic of our lesson: yield and yield measures, yield spread measures for fixed rate bonds. So we are doing here different type of yield measures. We have already covered G spread and I spread. Now we are going for Z spread. Z spread or zero volatility spread. Numerical question may come. Now, first of all, what is the difference between G or I spread versus Z spread? Both G spread, that is Government of India security, is the benchmark in that case, or I spread is your interpolated standard swap rate, fixed rate, is the benchmark rate. These are used versus the YTM of your corporate bond. So how much extra yield is required for your corporate bond is represented by versus G spread or I spread versus Government of India's government securities YTM or interest rate swap rate respectively. So अगर देखें तो ये जो G spread और I spread थे, ये क्या कर रहे थे कि ये दो YTMs एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सेम टेन्योर पे कॉर्पोरेट बॉन्ड वाईटीएम वर्सेस गवर्नमेंट बॉन्ड वाईटीएम ऑफ दैट टेन्योर को ही कंपेयर कर रहे थे. दो पॉइंट, एक ही टेन्योर के दो वाईटीएम्स का डिफरेंस था. इट्स अ डिफरेंस बिटवीन, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिंगल नंबर्स. बट अगर हम जी स्प्रेड के कर्व को समझें, जी स्प्रेड का कर्व ऑफ कोर्स दोनों पैरेलल नहीं है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड एंड बॉन्ड यील्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड के जो कर्व्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर टर्म टू मैच्योरिटी पैरेलल नहीं है. सो जब पैरेलल नहीं है तो दोनों के अलग अलग पॉइंट यानी कि अलग अलग टर्म टू मैच्योरिटी पे जो जी स्प्रेड कैलकुलेट होगा वो अलग होगा. 3 ईयर के कंपैरिजन वर्सेस 9 ईयर के जी स्प्रेड अलग होंगे. 3 ईयर में 3 ईयर का कॉर्पोरेट बॉन्ड का यील्ड वर्सेस 3 ईयर का गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड कंपेयर होगा, जबकि 10 ईयर में 10 ईयर का कॉर्पोरेट बॉन्ड का यील्ड वर्सेस 10 ईयर का गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड कंपेयर होगा. एंड सेम इज द केस विद द आई स्प्रेड. हमें ऐसा कोई स्प्रेड चाहिए कि जो कांस्टेंट रहेगा, स्टैटिक रहेगा ओवर द कंप्लीट यील्ड कर्व अक्रॉस द टर्म टू मैच्योरिटी. यही एक्स्ट्रा रिटर्न हम अपने बॉन्ड पे दे रहे हैं, दैट इज जेड स्प्रेड. So Z spread is the constant yield spread over the government or interest rate swap spot curve. So हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो स्पॉट कर्व है यानी कि जो स्पॉट रेट्स हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनकी जो यील्ड है वर्सेस कॉर्पोरेट बॉन्ड एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ डिफरेंट कैश फ्लो जो हमारी बॉन्ड दे रही है वो कंपेयर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे वो कौन सा स्प्रेड है, एडिशनल रिटर्न है जो हम हर कैश फ्लो में इंक्लूड कर रहे हैं. कैसे वर्किंग होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखते हैं. लेट्स गो फॉर दिस. सो वी हैव ए कॉर्पोरेट बॉन्ड, XYZ बॉन्ड, Z स्प्रेड का कैलकुलेशन कर रहे हैं. XYZ bond, XYZ Limited issuing bond of coupon rate of 10% with a face value of 1000. Periodicity is 1 and annual. So we have PMT here 100. Now we have tenure of 4 years, and what we need, either price or yield, both are not available. So what we are going to do, first of all we will find out what are the spot rates of government bonds of respective tenure where cash flow is arising from this bond. So bond is going to generate cash flow at a time T1, 1 year, second year, 3 year time, and 4 year time. What are the spot rates? Spot rates are, let's say, 5%, 5.5%, and 6%, and let's say 7%.
And these spot rates are government bond yield, not the corporate bond yield. Corporate bond should have some additional yield inbuilt into it. That is the spread over the that government yield. Why? Because of difference in the credit risk, risk, liquidity, taxation status, etc. So how to value this bond? We may say that bond price will be equals to 100 the first cash flow divided by 1 plus 5%, 0.05 plus some extra amount, extra spread. That spread is Z spread. And this spread will be constant, static over the period. 100 upon 1 plus 0.055 plus Z to the square. 100 upon third year coupon 1 plus 0.06 plus Z power cube plus 100 plus 1000 divided by 1 plus 0.07 plus Z power 4. Now, two type of question we may get here. First, they will give you price and they will say, okay, calculate Z. Then you have to go for trial and error, which will be very difficult. It's better in the question, with the question, we will be having three options. So what we are going to do, we will actually use those three options to arrive at that price. Whichever option is going to match present value of cash flows with that price is our answer. So how we are going to do, let's say in this case, or the second way of asking question is कि हम लोग वो Z spread दे देंगे. Let the Z spread is 200 basis point, means 2%. So, and calculate the price. So, we will have 100 upon 1 plus 0.05 plus 0.02, 100 upon 0.1 plus 0.055 plus 0.02 square, 100 upon 1 plus 0.06 plus 0.02 cube, and 100 plus 1000 upon 1 plus 0.07 plus 0.02 to the power 4. So let's calculate the value of this bond. So it is going to be, first of all, 100 upon 1.07, 100 upon 1.075 square, 100 upon 1.08 cube, and 1100 upon 1.094 power 4. So it is equals to 1.07 store. This is 93.4579 plus 100 divided by 1.075 square is equals to 86.533. Adding in the memory, 1.08 yx cube reciprocal multiplied by 100 store plus 1 plus 79.3832 plus 1100 divided by 1.09 2 times square, it is going to give 779.2677. So this is equals to, how much? 259 plus 779.2677 is equals to 1038.64. So the price of the bond using the government spot rates plus 200 additional yield over the period, constant yield over the period over those spot rate is equals to 1038.64. So ये जो हमारा 200 basis point या 2% है, ये over the yield curve at all point of time एक equal spread है जो हमने identify किया. सो दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, हमें Z स्प्रेड दे दे और प्राइस निकालने को बोले, या फिर प्राइस देके हमें Z स्प्रेड निकालने को बोले, विच विल बी थ्रू ट्रायल एंड एरर. बेटर हम क्या करेंगे, जो हमारे को ऑप्शन दिए हम उनको वन बाय वन अप्लाई करेंगे एंड द प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी इक्वल आ जाएगी जो प्राइस गिवन है, दैट इज द Z स्प्रेड फॉर दैट इज द आंसर ऑफ द Z स्प्रेड. So hopefully Z spread everyone got it. Next is last one is option adjusted spread. Again numerical नहीं है हमारे पास में, इसका theoretical है, but समझते हैं क्या है. Option adjusted spread, again G spread, I spread और Z spread से कैसे different है? First of all, it is only calculated for a callable bond, not for option free bond.
इज यूज्ड टू कैलकुलेट ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड। कि कॉल ऑप्शन का जो रीजन है, कॉल रिस्क का जो स्प्रेड है, एडिशनल यील्ड जो इन्वेस्टर डिजायर कर रहा है, बिकॉज कॉल रिस्क ही इज फेसिंग, सो ही इज गोइंग टू आस्क एक्स्ट्रा यील्ड, दैट एक्स्ट्रा जो हमारा स्प्रेड है वो कितना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, in this case we are going to use option pricing model including the interest rate volatility assumption related to interest rate volatility जैसा हमने ब्लैक एंड स्कोल में किया डेरिवेटिव्स में। सो यहां पर ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल यूज करके the OAS is based on option pricing model, the value of embedded call option जब हमने कॉलेबल बॉन्ड का वैल्यूएशन भी किया, उसका YTM का कैलकुलेशन किया, वैल्यूएशन नहीं YTM का कैलकुलेशन, हमने कहा दो मेथड है। मेथड वन जहां पर आप YTC और YTM कैलकुलेट करेंगे और ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड हम क्या मान लेंगे, जो सबसे वर्स्ट होगी यानी कि सबसे लोएस्ट होगी। सेकेंड वे था कि हम कॉल ऑप्शन का वैल्यूएशन करें और उसको एडजस्ट करें फ्लैट प्राइस में से, और जो नेट प्राइस आई है उससे जो यील्ड कैलकुलेट होगी वो ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड होगी। यहां पर भी हम सेकेंड मेथड को ही कंटिन्यू करेंगे जिसके हमारे पास न्यूमेरिकल नहीं है, देखेंगे इस लेवल पे नहीं है। सो ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड के लिए क्या करेंगे, हम उस कॉल ऑप्शन का जो एम्बेडेड कॉल ऑप्शन है उसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बेसिस पॉइंट पर ईयर। वह हमने एक्चुअल अमाउंट किया था, यहां बेसिस पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे और उसको हम जेड स्प्रेड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो OAS विल बी इक्वल्स टू योर जेड स्प्रेड जो भी हमने कैलकुलेट किया लेस योर ऑप्शन वैल्यू इन basis point per year. That is why it is called as option adjusted spread. जो कॉल ऑप्शन कॉलेबल बॉन्ड में कॉल ऑप्शन का के रिलेटेड जो कॉल रिस्क हुई है इन्वेस्टर को, उसके लिए जो एक्स्ट्रा स्प्रेड इन्वेस्टर मांग रहा है उसको जो जेड स्प्रेड है उसमें से डिटैच किया, देन इट इज गोइंग टू गिव यू ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड के भाई इसमें कितना एडिशनल रिटर्न ओवर द यील्ड कर्व, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वेस्टर इज आस्किंग इन फॉर्म ऑफ डिजायर्ड यील्ड, बिकॉज जेड स्प्रेड में हमने ऑलरेडी स्पॉट रेट को कंसिडर कर लिया है। तो जेड स्प्रेड इज द टोटल स्प्रेड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिस्क विच इन्वेस्टर इज फेसिंग। और अगर ये कॉलेबल बॉन्ड है तो इसमें एक एक्स्ट्रा और रिस्क आ गई, रेदर देन क्रेडिट रिस्क एंड लिक्विडिटी एंड टैक्सेशन एस्पेक्ट, एक कॉल रिस्क और आ गई। तो उस कॉल रिस्क के लिए भी हमने एक एडिशनल यील्ड कैलकुलेट कर ली इन द फॉर्म ऑफ यूजिंग दैट ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल, और उस यील्ड को जब हम जेड स्प्रेड में से माइनस कर देते हैं तो जो नेट नेट यील्ड है दैट इज बिकॉज ऑफ आवर क्रेडिट एंड अदर रीजंस जो हम इन्वेस्टर बन के मांग रहे हैं, एज अ इन्वेस्टर वी आर एक्सपेक्टिंग। तो दिस इज अ OAS ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड। कैसे निकलेगा, जेड स्प्रेड में से हम एम्बेडेड कॉल ऑप्शन की बेसिस पॉइंट में जो वैल्यूएशन कैलकुलेट की है यूजिंग ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल एंड असम्पशन रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी, उसको हम माइनस कर देंगे। न्यूमेरिकल नहीं है, इसको यहीं पे रोकते हैं और इसी के साथ हमारा ये पूरा लर्निंग मॉड्यूल कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।